Borivali as a market has changed in the last 10 years. बोरीवली में ऐसा है कि आप सी ग्रेड लोकेशन में भी चले जाओगे ना तो मिनिमम इज 30,000-32,000 रुपीज. प्राइम लोकेशन नियरली 50,000 रुपीज पर स्क्वायर इज द रेट इन बोरीवली राइट नाउ. तो वहाँ पे एक अभी गुजरात का ज्वेलर आया है. ही टुक नियरली हाफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन रेंट एंड ही इज पेइंग रफली अराउंड 70 लाख रुपीज रेंट पर मंथ. Trust, real estate is all about trust. तो आज वहाँ के कोई एसोसिएशन मेंबर को अगर किसी क्लाइंट को ऐसा है कि बॉम्बे कुछ बड़ा टिकट साइज लेना है, दे डोंट थिंक ट्वाइस. वो खाली नंबर पास ऑन कर देते हैं कि आशिफ भाई यार देख लेना, क्लाइंट बहुत अच्छा है मेरा और आप ट्रांजैक्शन कर लेना. वन फाइट इज वन नेशन वन लाइसेंस. आज कोई भी डॉक्टर होता है कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, लॉयर होता है कहीं भी कोर्ट में जाके खड़ा रह सकता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है वो कहीं भी कोई भी सिटी में जाके अपना पॉलिसी बेच सकता है. देन व्हाई कांट अ ब्रोकर, अ चैनल पार्टनर, रियल्टर सेल अ प्रॉपर्टी अक्रॉस इंडिया? Welcome to episode number 11, season 2 of the Hashtag Show. In the last 10 episodes, we have been inviting guests across industries, across business sectors, real estate, investments, finance, startup, media, entertainment. 25-30 years of being in business, I have made some very, very good friends, especially in the real estate and the media sector, which is our main core business. In real estate, I have a friend of mine who is joining us today and who is our special guest for today's guest. His name is Ashish Mehta. Hi Ashish. Hi. Welcome. Thank you so much. Thank you for calling on this podcast. Yeah. So I'm going to be having a little bit of a complex today because if you can see and if the camera can zoom, we have a very fit person over here as compared to me. I am completely opposite. And this is what I admire about Ashish, that he's extremely a busy person. As I give you his bio, you will understand. Still, he gives time to fitness and gym. I mean, you're very regular, right? Very regular. And I this don't is- miss my workout. This is for how many years? At least from last 10-11 years, I don't miss my workout for sure. So obviously फर्क पड़ता है ना. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. एक तो दो चीज है आशीष. एक तो है आपका लुक और अपीयरेंस. Yes. And I know you love to wear good clothes, Yes. always in brands. So even internally also you feel good. या बिकॉज से क्या है कि हम रोज़ उठते हैं, काम पे जाते हैं. वी लव टू वर्क बिकॉज वी वांट टू अर्न मनी. सो हम खुद के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं. सो देन दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू फॉर आवर सेल्फ. और हम अंदर से अगर हेल्दी नहीं होंगे तो बाहर से कहाँ से कुछ और कर पाएंगे. Correct. एंड इट फील्स यू गेट लॉट ऑफ फ्रेशनेस, यू फील एनर्जेटिक. शाम होते ऐसा नहीं लगता यार थक गया, आगे काम नहीं करना. अगर 10 बजे तक भी रात को काम करना है, यू कैन इजीली स्ट्रेच दैट आउट. Correct. So you even in your fitness, and I saw in your bio, you're also gymming, and you're also a director in the Gold Gym, one of the franchise of the Gold Gym. So if I'm not mistaken. we have a franchise of Gold Gym which is in Kandivali. Very good. It's an around 10,000 square feet gym which we own. Very good. So how important is diet in your entire regime? So diet plays a vital role with workout because खाली workout से आपका कुछ नहीं होना है. जब तक आपका कोई अच्छा डाइट नहीं है एंड उसके साथ वर्कआउट नहीं है तो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन है तो आपका ये जो रिजल्ट आना रिजल्ट आएगा ही नहीं कभी. सो डाइट प्लेज रियली वाइटल रोल इन योर वर्कआउट एज वेल. But that means compromising and sacrificing sweets and your fried See, food. I don't generally have a very sweet tooth. I love desserts, but I don't have a sweet tooth in तो terms ऐसा of नहीं कि sweet बहुत खाना है sweets. मिठाई. बहुत मिठाई खाना ऐसा कुछ नहीं है. बट मेरे को खाने का बहुत शौक है. आई एम वेरी फूडी. So I make sure that Monday to Friday I try to maintain my diet. Okay. Saturday, Sunday it's my cheat day. I go in and everything and anything whatever I want to Chale. do. So we will talk about more about Ashish. So Ashish is very, very active, as I said, in the business of real estate. I know him for now more than 2 decades. He is the director of the Elegance Realty Private Limited. He's a director, like we spoke about, in many companies. One is Aquamax Rehab and Wellness Private Limited, Gold Gym, which he just mentioned in Kandivali. What is very important is, other than the business of real estate, other than fitness, other than being a director in other companies, he is very active from a real estate organization point of view. He is the current president of Area. Area is one of the oldest real estate broking group, and he is also NR India में आपका designation क्या है अभी? Treasurer. You are the treasurer in NR India. Yeah. So the now so NR India में भी आपने काफी टाइम दिया है. Yes, has given a lot of time to NR India. तो since we are talking of association, Ashish, that means I would say 10 years you have been involved in association, NR Yeah, India,
और Yes, एरिया ग्रुप में मिला yes, के। yes, yes, तो definitely. एरिया में अगर आप अभी प्रेसिडेंट है तो इसके पहले यू आर होल्डिंग सम अदर डेजिग्नेशन? Yeah, so I started in Area Group as a member first, then I became a committee member, then gradually I went as a treasurer, and then I switched over to president. And I think because I've come to number of your area group Yes. events with Ram Prasad Padi and Vinod Thakkar, Yeah. and I've attended a few events, covered a few of your events. आपके जो सेमिनार्स और आपके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल की होते हैं. You always been a good part of. I have always been part of it, yeah. Whether Good it part is of- president induction Anything or your and seminar, everything. because मेरे बहुत सारे friends वहाँ के हैं और I think जो सबसे important चीज़ एरिया ग्रुप का है, you one of the oldest. Well, it's Smart. been 27 years. बाकी सब बाद में आए. हाँ हाँ. और जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है और ये शायद आपके दिस गोज टू द क्रेडिट, बोरीवली, मलाड, कांदिवली एज इन सबर्ब, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ लोकेशन फ्रॉम अ रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट, Yes. यू नो. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जो ये ट्रेंड था मैंडेट मार्केटिंग का, सोल सेलिंग का, मेरे ख्याल से ये भी काफी हद तक कांदिवली, मलाड और बोरीवली में था. So कैसा था? First I'll talk about area. So area, what our members are from Daisar till Bandra, and central side we have Powai, Mulund and Ghatkopar. ये सब आपने बाद में ऐड किया है. ये बाद में ऐड करते हैं. इनिशियल जब एरिया शुरू हुआ, इट वाज बिटवीन दहीसर, बोरवली एंड कांदिवली. एक छोटा सा ग्रुप बना था जहाँ से शुरू हुआ था. बाद में बढ़ते गया, then we have spread our wings to this particular area from Daisar till Bandra and then Powai, Mulund and Ghatkopar. करेक्ट. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द मैंडेट पार्ट, मैंडेट शुरू करना ही एक जो ट्रेंड आया था वो था बोरीवली कांदिवली से ही. वही मैं कह रहा हूँ ना. वहीं से शुरू हुआ था कि हाँ एक ग्रुप बना के लोग साथ जमा हुए, दे टुक अ प्रोजेक्ट, दे डिड अ मैंडेट प्रोजेक्ट, दे डिड अ टर्न अराउंडेड प्रोजेक्ट इन 1.5 month. देन उसका एक पहला टप्पी हुआ, दूसरा टप्पी हुआ. सो इट कीप्ट ऑन रोलिंग दैट बॉल. सो देन वहाँ से मैंडेट का गेम शुरू हुआ था. एनआर इंडिया है, हाँ जी. उसमें भी एरिया ग्रुप का काफी बड़ा हाथ है. यस. Lot of the presidents, if I'm not, I think Kalpesh Shah, who is again an area Yes, he is an active member, ex-president in Air India. NR India, और मेरे ख्याल से बाकी भी काफी लोग एक्टिव थे. Yes. राम So प्रसाद now also our holds. so now our president elect is again of area group. अच्छा अच्छा. Yeah, for 26-28 Chandresh Vitlan. चंद्रेश, राइट. तो चंद्रेश ने भी बल्क बुकिंग और मैंडेट मार्केटिंग काफी करी है, राइट? Yeah, they're doing very good in the mandate part. Very And nice. what about you? You as a company also So are as a into company, mandate? our basic, we are into 3 different segments. One is mandate. We have nearly around right now 5 projects on mandate, which Very is good. in Kandivli, Andheri and Mulund. Very spread good, very across these destinations. Another important part we do is we finance to developers. अच्छा, फंडिंग भी करते हैं. फंडिंग करते हैं. सो अनसिक्योर्ड लोन है, नॉट एन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन Okay. एंड अगेन सम सिक्योरिटी. दो इट्स एन अनसिक्योर्ड बट वी सिक्योर्ड आवर हाँ, मैं समझ गया. तो यू आर नॉट टेकिंग द इंस्टीट्यूशनल राउट. यस. It is personal funding Yes. against inventory or against whatever. Yes. So it is always a bridge gap finance which developers need between the CC and acquiring a plot. It's a bridge gap funding आशीष, which आई we थिंक need. ये ना, ये जो दोनों चीज़ आप बता रहे हो, अनसिक्योर्ड लोन या लोन विच इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनल, मैंडेट मार्केटिंग, ग्रुप बुकिंग, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि आपका जो डेवलपर और ब्रोकर का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है. Yes. And third important thing what we do is nowadays what we have started from last 3 years, that we give you a contractor. So if a developer has taken over the project, he wants to construct a building. So generally lot of developers don't have that bandwidth in during the starting of the project. क्या प्रोजेक्ट शुरू करना है, हाँ, मैक्सिमम पैसा लगता है लोगों का प्लिंथ के ऊपर. Correct. तो वो अप्रूवल्स में पैसा डाले कि बिल्डिंग काम शुरू करके उसमें पैसा डाले. करेक्ट. So we give you a contractor who will give you 3 different schemes. One is either a barter, he will construct and you have to give him the stock. Correct. Another is the deferred payment. मैं एक particular stage तक बिल्डिंग को Very लेके good, आऊंगा very and good, then you very have to pay me together. वेरी गुड. So these are couple of combinations what we have started in our new segment. दिस इज योर ओन बिजनेस मॉडल. Yes, this own तो business आशीष, ये model. तो तुम्हारा तीनों जो वर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. और आई थिंक इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया, तुम्हारा जो भी डेवलपर है उसका रिश्ता तुम्हारा बहुत, मतलब यू आर एक्चुअली अ पार्टनर टेक्निकली. Partner will give you end-to-end solution. End-to-end कि भाई फाइनेंस चाहिए मिड सेगमेंट के लिए, हाँ, ब्रिज गैप के लिए, विल गिव यू दैट. विल गिव यू कॉन्ट्रैक्टर जो को बिल्डिंग बनाएगा और साथ में हम ही सोल मेंटेन लेके आपका माल भी बेच के देंगे.
Borivali as a market has changed in the last 10 years. अभी क्या रेट होगा पर स्क्वायर फीट? बोरीवली में ऐसा है कि आप सी ग्रेड लोकेशन में भी चले जाओगे ना तो मिनिमम इज 32,000 रुपीज एंड प्राइम लोकेशन नियरली 50,000 रुपीज पर स्क्वायर इज द रेट इन बोरीवली राइट नाउ. तो आप अभी बोरीवली का रेट टेक्निकली अभी तो खैर खार बैंड्रा का सैंटा क्रूज खार थोड़ा बढ़ गया है. आज से कुछ साल पहले वो 40-50 के आसपास ही था. तो टेक्निकली वो ज़्यादा फर्क नहीं है रेट नहीं है. सो राइट नाउ इफ यू सी आप अंधेरी ले लो, पार्ला अंधेरी ईस्ट ले लो आप. पार्ला वेस्ट एश्योर से बेल्ट ले लो तो आपको वहाँ 50-55 हज़ार रुपये में मिल जाता है. तो सेम यू गेट इट राइट नाउ इन बोरीवली. तो एक माइक्रो मार्केट अच्छा बन गया है आपके हिसाब से कि वहाँ पे जो एक स्कूल है, आई थिंक स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं ना बोरीवली अच्छी में. है, इंफ्रा बहुत अच्छा है. इंफ्रा बहुत अच्छा है. जितनी ओपन स्पेसेस बोरीवली में है शायद ही कोई सबब में है इन टर्म्स ऑफ गार्डन, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड्स, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया. आज भी बोरीवली में बहुत अच्छी लैंड अवेलेबल है. सो यहाँ पे बोरीवली इतना कंजेस्टेड नहीं है बाकी सबब्स के जैसे. तो आशीष यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करेंगे बिकॉज ये हमने लास्ट हमारे एपिसोड में डिस्कस किया था इंफ्रा डेवलपमेंट. यस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बे में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है. Yes. आपका सी कोस्ट हो गया, आपका सी लिंक हो गया, आपके ब्रिजेस हो गए, हाईवेज हो गए, आपके मेट्रो हो गए. ये जो कनेक्टिविटी है और ये जो इंफ्रा डेवलपमेंट है आपके हिसाब से रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि आज क्या हो गया कि लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम जाता था ट्रैवल में. करेक्ट. सो आज कोस्टल रोड बन जाना, जो आज अभी तक बैंड्रा है, बैंड्रा से वो जू आएगा, जू से अंधेरी, अंधेरी से द प्लान इज स्टिल बोरीवली विच इज गोना गो, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है. करेक्ट. सो आज आपका ट्रैवल टाइम जो लोगों का जा रहा है वो बहुत कम हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, रियल एस्टेट जो नैरो डाउन होना है, जो आगे तक जाना है, बोरीवली, मीरा रोड, भाईंदर और बहुत सारी ओपन लैंड अवेलेबल है, बोईसर, पालघर, वो सब सेगमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे. सो रियल एस्टेट इज गोना प्ले अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, बिकॉज जितना इंफ्रा अच्छा होगा लोग उतना आगे के डेस्टिनेशन में जाएंगे, घर खरीदेंगे. आज क्या हो गया है कि अब किसी को बोलो विरार, पालघर, बोईसर 2 बार सोचते हैं जाने के लिए. पर जब से ये कनेक्टिविटी बढ़ते गया है, लोकल ट्रेन अच्छी हो गई है, मेट्रो और आगे जाते जा रहा है, मेट्रो बिटवीन थाने एंड बोरीवली, वेरी इंटरेस्टिंग. द टनल बिटवीन बोरीवली एंड फ्रॉम नेशनल पार्क टू थाने. अच्छा, आई एम नॉट अवेयर. देयर इज अ टनल कमिंग अप. काम शुरू हो गया कि काम होने शुरू वाला है? हो गया है, काम शुरू हो गया है. अच्छा. There's a tunnel coming up between from National Park to Thane. So right now your travel time from Borivali to Thane is nearly 1.5 hour, which will cut That is down from the Western Express Highway. Western, and then you have to go via Gobandar Via Road. Ghodbunder Road, right. That's the only way right now. Correct, Cross Desai Chakna ka go via Gobandar Road. Correct. So right now your travel time will cut down to 35 minutes. That will give you a major boost in real estate between Borivali and Thane, between Daisar and Thane. No, और सबसे compared to Delhi NCR, which is a very circular city, Yes. Bombay is a very linear city. Linear city. तो I think ये सब जो connectivity होने वाली है, ये बहुत फर्क पड़ने वाला है. So I right now attended a seminar couple of month back. So there was a guy from Infra who gave a clear picture that what are they planning for Mumbai. जैसे आप अहमदाबाद ले लो, अब दिल्ली ले लो, अब गुड़गांव ले लो, सब जगह उन्होंने रिंग रोड बनाए हुए हैं. करेक्ट. बॉम्बे में रिंग रोड नहीं, क्योंकि बॉम्बे जैसे आपने बोला स्ट्रेट थी. स्ट्रेट है. सो नाउ दे आर प्लानिंग एंटायर मुंबई ना रिंग रोड पैटर्न. वेरी गुड. जैसे टनल हो गया तो बोरीवली से थाने जा सकते हो. आप थाने से निकले ईस्टर्न एक्सप्रेस अपने फ्रीवे पकड़ा, आप टाउन जा सकते हो. अब टाउन से निकले आप कोस्टल रोड लिया, आप बैंड्रा आ सकते हो. कोस्टल रोड बहुत लिया फर्क पड़ने वाला है. सो दैट विल बिकम एन आउटर रिंग रोड लाइक अदर सिटीज. तो इसमें प्राइजेस भी बिकम काइंड ऑफ स्टेबल, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. जैसे पहले क्या हुआ था आशीष, जैसे हमने आज 25-30 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया तो जैसे नरीमन पॉइंट था या चर्च गेट था, लोग वहां से अंधेरी लोखंड वाला शिफ्ट किए. करेक्ट है कि नहीं? बैंड्रा शिफ्ट किए. बैंड्रा का रेट ज़्यादा था तो साउथ से लेके नॉर्थ तक आते आते आपके प्राइजेस कम होते गए. हाँ, मतलब वहाँ 100 तो 20 पे आ जाते थे. हाँ, तो आपको बड़ा फ्लैट चाहिए तो आपको 2 फ्लैट चाहिए, 2 बच्चे हैं, तो दैट वाज द लार्जर थिंग. दिस विल स्लाइटली चेंज. एंड ऑल्सो आई नोटिस फ्यू इयर्स बैक, जैसे पहले हम साउथ बॉम्बे से नॉर्थ बॉम्बे आ रहे थे, बीच में एक टाइम ऐसा आ गया, स्पेशली हमारे जूह स्कीम में बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज थे जिन्होंने, क्योंकि आपका प्रभा देवी और वर्ली बहुत अच्छा डेवलप हो गया. वहाँ पे ओबरॉय ने अच्छी बिल्डिंग बनाई, रहेजा ने बिल्डिंग बनाई. सो रादर देन स्टेइंग इन सबर्ब्स, दे हैव सोल्ड देयर बंगलोज एंड लार्जर अपार्टमेंट्स हियर इन जुहू एंड दे शिफ्टेड टू दी साउथ बॉम्बे. तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है. वो भी हुआ है. हम जब भी कांदिवली में महावीर नगर डेवलप हुआ, वहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ 50% क्राउड नेपेंची रोड, साउथ बॉम्बे, सोबो से शिफ्ट हुआ है. क्यों? वहाँ पे फ्लैट बेचा,
यहाँ पे दोनों भाइयों को सेटल कर दिया, दोनों के लिए बड़े बड़े 4-4 बेडरूम के घर ले लिए, स्टिल दे हैव सेव मनी। सो वो माइग्रेशन हुआ था आज से 17-18-20 साल पहले, क्योंकि रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था। सो तभी भी ये माइग्रेशन सोबो से सबब में काफ़ी हद तक हुआ है। और अभी रिवर्स भी होना शुरू हो गया, जैसे अभी रिवर्स होना भी शुरू हो गया। योर कांदिवली, मलाड, बोरीवली, इसका जरा लाइफस्टाइल के बारे में बताइए ना। व्हाट इज द इवनिंग, योर रेस्टोरेंट्स, योर बार्स, पब्स, लॉन्च, क्या आपके हिसाब से क्या क्या? सो इफ यू सी बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, दिस इज द हब राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट। थोड़ा गुजराती का फर्क पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा यार, मतलब जहाँ गुजराती वहाँ खाना पहले खाना सो आप अगर ये सबब देखो तो वहाँ पे इतने नए रेस्टोरेंट, इतने नए लाउंजेस आ रहे हैं, और सब बड़े साइजेस, क्योंकि क्या एक रियल एस्टेट आपका थोड़ा सस्ता है इन टर्म्स ऑफ रेंट। करेक्ट। सबब से ले लो आप, बैंड्रा, जू, कंपेयर करो तो। करेक्ट। सो वहाँ पे जो साइजेस के रेस्टोरेंट्स खुल रहे, 10,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट, 7,000 लार्ज रेस्टोरेंट, लार्ज गुड साइज लाउंजेस। सो उससे आज लोगों को जो ट्रैवल करना पड़ता था पहले कि यार कोई अच्छी रेस्टोरेंट जाना है तो बैंड्रा जाना है, जू जाना है, अंधेरी जाना है, बट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर सबब बोरीवली, कांदिवली। आपका बोरीवली में एक रोड है ना जहाँ पे सारे ज्वेलर्स भी हैं? सो राइट नाउ बोरीवली इज बिकम द बिगेस्ट मार्केट ऑफ ज्वेलरी इन एंटायर मुंबई। क्या बात है! एंटायर मुंबई। सो वहाँ पे आप नाम ले लो, वो ज्वेलर सारे ब्रांड है, सब ब्रांड, कोई एक भी ब्रांड नहीं, जो भी बोलो, मलाबा, जॉयलुकास, तनेश, सब आ गए, सब आ गए। अभी एक सबसे बड़ा ज्वेलर है, इज टेकन नियरली एंड हाफ ऑफ द बिल्डिंग, विच इज, सो ज्वेलर जनरली बोरीवली में थे सब एलटी रोड पे थे। एलटी रोड पे नाउ एलटी रोड पे कोई जगह अवेलेबल नहीं, क्योंकि नया बिल्डिंग कोई नहीं आ रहा है, तो एलटी रोड के पहले जो रोड्स है, जैसे कि चंदार का रोड और शिवपुरी, दैट इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। तो वहाँ पे ज्वेलर्स खुलने लगे। तो वहाँ पे एक अभी गुजरात का ज्वेलर आया है, ही टुक नियरली हाफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन रेंट एंड ही इज पेइंग रफली अराउंड 70 लाख रुपीज रेंट पर मंथ। तो आप समझो क्या मार्केट होगा, क्या कंपटीशन होगा। तो आशीष, ये इसके बारे में बात करते हैं। आपकी जो कंपनी है, आपने कुछ मेरे हिसाब से 2011 में एस्टैब्लिश किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ पे अपन दो तरीके से बात करेंगे। So you started as an entrepreneur or you were working earlier? What is your journey? Yeah. So when I was studying, I joined a construction company called Vadhva Construction. Vadhva. That was my first and last job. Okay. I worked for Vadhva for nearly around 10.5 years. You worked for 10 years? 10 years in Vadhva. In one company? One company. So I joined in 2001. I left Vadhva in 2011. And started my own company. Started your own. So I joined as a sales executive, and when I left the company, I was a sales head for entire company. So you were talking of sales head of entire Vadhva group. Yes. So मतलब entire Bombay, whatever they were. Whatever they were. And when, if I'm not mistaken, at 2010, yes, Vadhva had reached a good name. Yeah, of course. They were in all over. All over, yes. They had established a very good brand in terms of. I think Sanjay Chhabria भी उस वक्त आ गए थे. Yeah, Sanjay Chhabria was there, no, in the group. He was there in the group way before when I joined. So I joined company in 2001. He was way before that. Vadhva. And because I left in 2011. Then they split it in 2014. Vadhva. एक बोरीवली में इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जहाँ पे एक क्लब था. Yes, that's called Aquaria Grand. Aquaria Grand. Yes. Very prestigious project. Prestigious project. 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में it was an article on the front page. Highest rate established in Borivali was this Aquaria Grand. It sold for nearly around approximately 68,000 rupees. तो बताइए ना, अभी जो आपका इतने साल में जो चेंजेस आए हैं, जो ये जैसे अभी आपने बताया कि रेस्टोरेंट्स बहुत सारे आ गए, ज्वेलर्स बहुत सारे आ गए, बड़ा मार्केट बन गया है, एक्वा ग्रैंड करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, क्लब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. एनीथिंग एल्स यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके सामने? सब देखा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो ओरिजिनली फ्रॉम द सेम एरिया. Yeah, born and brought up in Borivali. You're born and brought up in Borivali. Born and brought up in Borivali. My schooling was Borivali. My education was in suburb between Borivali and Malad. And I started तो आपके working. सामने सब चीज चेंज हुआ है. I started working from my FI BCom, so I didn't have much time to travel for my education also because I was working parallelly with my education. अच्छा, very good. And then I joined Vadhva. I left Vadhva in 2011. Started my own company in Jan 2011. That's why I established my own company as an entrepreneur. Very good. And then my journey has been a very wonderful and smooth. Now in terms of you see what you're talking about, कि जो जर्नी देखी, जो ग्रोथ देखा सबब का, आज बॉम्बे में 2 ही MCA क्लब है. करेक्ट. वन इज BKC, वन इज इन कांदिवली. सो आज उन्होंने भी क्लब वहाँ पे खोला तो कुछ सोच के खोला होगा, पोटेंशियल दिखा होगा.
and the club is doing wonderful. Wonderful. A good land area, good infra of the club, all possible amenities and all possible sports is available in the club. So आज हमने जो ग्रोथ देखा ना बोरेवली, जैसे ओबरॉय ने अभी बोरेवली में प्रोजेक्ट बनाया, बड़ा प्रोजेक्ट किया सो कमिंग विद अगेन अ 5-star होटल देयर, अ मॉल देयर. सो जो पोटेंशियल हर ब्रांड देख रही है, और आप कभी भी देखोगे ना तो कोई भी अच्छी ब्रांड ने अगर अपनी लाइफ की जर्नी की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से की ना, तो विच इज फ्रॉम बोरिवली कांदिवली. अब हीरानंदानी ले लो, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बोरिवली में कांदिवली में बनाया. वहाँ पे लैंड पार्सल्स थे बड़े बड़े. लैंड टाटा स्टील था ना जो मेगा टाटा स्टील था, ये जो ओबरॉय ने बनाया. अगेन फिर आपका जो गोदरेज, सॉरी दिस Godrej came up with a wonderful project in Kandivali East right now, Kandivali East. which did a tremendous sale across Mumbai. जो figures आए हैं अभी 4 दिन पहले, it was the highest sale revenue any company achieved in last quarter and in so many years. Then Oberoi also bought the Siba property in Goregaon. Yes. That was again a very big game changer. Big changer. Planning or design? Personally, how important it is as a It's very realtor? important. People need something innovative. Clients need कि यार हटके क्या है प्रोजेक्ट में, लग्जरी क्या है. बिकॉज आजकल लोगों को क्या हो गया है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बढ़ गई है. और लोगों को चाहिए कि हमको बड़ा घर चाहिए, क्योंकि पहले कोविड में लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया यार, 2 बेडरूम में रह रहे, वाइफ लिविंग रूम में वर्क फ्रॉम होम कर रही है, हस्बैंड बेडरूम में कर रहा है, बच्चे दूसरे बेडरूम में स्कूलिंग कर रहे हैं. लोगों ने समझा चला पैसे होने के बावजूद भी हम ये छोटे से घर में रह रहे हैं तो क्या फ़ायदा. सो पीपल स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज अ लॉट. जो पहले 3 बेडरूम रहते हैं तो 5 बेडरूम में शिफ्ट हो रहे हैं. बड़ा घर चाहिए, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, क्यों ना खुद के ऊपर खर्चा करे. लोगों का माइंडसेट पोस्ट कोविड चेंज हो गया है. लोगों को ऐसा कि सेविंग बहुत कर लिया, सेविंग माइंडसेट इंडिया में बहुत था, अभी वो चेंज हो गया है कि हमको चाहिए हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो. वी स्पेंड ऑन आवर सेल्फ, वी स्पेंड ऑन आवर फैमिली. लोग इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहे थे. अब ट्रैवल भी देखोगे तो वेरी गुड. ट्रैवल इंडस्ट्री डूइंग वंडरफुल राइट नाउ. एक जो आशीष मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई वर्क मोर इन जुहू, सांता क्रूज, खार, बांद्रा. यस. तो यहाँ पे देवर ओरिजिनली ऑल बंगलो प्लॉट्स, राइट. अगर आप 60-70 साल पहले जाए तो वो बंगले के जो प्लॉट्स थे वो तोड़ के उसको पहले redevelop 1:1 FSI था, फिर 1:2 हुआ, अभी 1:3 हो गया. 12-15 माले की बिल्डिंग, Yes. प्लॉट साइज हमारा Same 600-700 स्क्वायर यार्ड है. आई थिंक ये आप लोगों को प्लस पॉइंट था, क्योंकि आपके पास जो लैंड थी Yes. वो काफी बड़ी साइज की थी. Yes. तो मेरे ख्याल से गेटेड कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से आपके एरिया से शुरू हुआ है. अब सब में कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे ना संगीत, तो एवरी प्रोजेक्ट हैज ऑल पॉसिबिलिटी एमिनिटीज जो हम नहीं सोच सकते. वो क्यों? क्योंकि लैंड एरिया है, पोडियम बनता है यहाँ पे. अगर आप किसी को बोलो पोडियम वाला बिल्डिंग, आपको कहीं नहीं दिखेगा. यहाँ पे आपको दिखेगा यार उसको स्टैक पार्किंग दे दो, एक और पार्किंग की मारा मारी, लोग रोज सुबह झगड़ा करे. वहाँ पे ऐसा कि हमारे बिल्डिंग में विजिटर पार्किंग है 25-25 गाड़ियों का. हमारे लिए तो है, पर विजिटर के लिए 25 गाड़ियों का पार्किंग है. करेक्ट है. सो लैंड एरिया थी, सर्वेंट्स gated क्वार्टर्स community हैं बहुत अच्छे आपके. बने. आई gated वेंट टू community वन बहुत अच्छी अपार्टमेंट बनी. समवेयर, तो पूरा एक सर्वेंट, जितना बड़ा हमारा यहाँ पे एक बेडरूम है उतना सर्वेंट्स का क्वार्टर है. यस. स्टोर रूम का एरिया है, बिकॉज गुजराती अगेन जनरली गुजराती माइंडसेट कम्युनिटी जो एरिया है ना, वहाँ पे डेवलपर सोच के बनाता है कि उनको एक रूम लगेगा सर्वेंट, एक पूजा रूम लगेगा, एक स्टोर रूम लगेगा. 3 चीज़ तो सोच के ही इंसान चलता है, क्योंकि पता है कि स्टोर गुजराती है तो हमें क्या होता है कि हमें को हैबिट है इतने वर्षों की कि पूरे साल का राइस, वीट, दाल, you know, store it, मसाला पूरा store it. So that's our generally. स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट ही वहीं से शुरू हुआ. हाँ, so that's how we've been cultured. That's how we have been, you know, taught by our parents and forefathers as well. So वो कल्चर तो हम आज वो डेवलपर भी वो सोच के ही प्लानिंग करता है कि इनको तो लगना ही है, तो ये देना तो हमारा सेल उससे जल्दी फास्ट बिकेगा, जल्दी माल बिकेगा और हमको भी टर्न अराउंड जल्दी मिलेगा. करेक्ट. कंटिन्यूइंग इन दिस अबाउट वेरियस फैक्टर्स, हाउ इज द सेकेंडरी मार्केट नाउ? अभी प्राइमरी मार्केट तो समझ में आ रहा है कि आपका बहुत जोर में चल रहा है. प्राइजेस आर एट इट्स पीक, वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, वेरी वेल डिजाइंड. और जैसे भी आपने बताया, मुझे जैसा जो लग रहा है, जो समझ में आ रहा है कि ब्रोकर्स का भी इनपुट, बिल्डर जब अगर प्रोजेक्ट बनाता है तो आई एम श्योर वो आपको और आपके कलीग्स को बुला के उनका राय लेता होगा, राइट? हाउ इज द सेकेंडरी मार्केट डूइंग ऑल्सो नाउ? सोसाइटी रीडेवलपमेंट जोर में चल रहा है बहुत ज़्यादा. आज बोरिवली कांदिवली में आप देखो, मतलब हर गली में कम से कम 5 बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है, हर गली में. क्योंकि आज क्या हो गया, वहाँ पे लैंड की स्कैरसिटी होना शुरू हो गया. क्योंकि तो जहाँ पे पहले लैंड था ओपन लैंड थी, वहाँ पे भी लैंड नहीं है अभी. जितनी बड़ी अच्छी ओपन लैंड थी वो सब कुछ डेवलप हो चुकी है. नाउ ओनली 2 थिंग्स आर लेफ्ट. वन इज रिडेवलपमेंट
and one is SRA. That's only two major chunk which major is thing. left behind to redevelop. बॉम्बे में एक फेस्टिवल है गरबा, तो मेरे को जहाँ तक थोड़ी बहुत याददाश्त है, बॉम्बे की सबसे बड़ा जो गरबा होता है वो Yes. आपके बोरीवली में होता है. Yes. वो क्या कोरा केंद्र ग्राउंड जो है कुछ. So एक ज़माना था जब कोरा केंद्र ग्राउंड पे ही गरबा होते थे पूरे बॉम्बे में, और लोग पूरे बॉम्बे से ट्रैवल करके वहाँ आते थे गरबा खेलने. पिछले लास्ट 6 सालों से फाल्गुनी पाठक who is the गरबा फाल्गुनी पाठक. who is the गरबा queen, she has been doing in Borivali in there's a ground called पुष्पांजलि and प्रमोद महाजन ग्राउंड. ओके. ये दो बड़े ग्राउंड है जहाँ पे एक साथ में 30,000 लोग गरबा खेल सकते हैं. 30,000. 30,000 people can play garba, and literally during these 9 days of Navratri you will see minimum on weekdays 20-25,000 people, and weekends between 30-32,000 people to play garba over there. तो ये पूरा फेस्टिवल है जोरदार. First, and Falguni Pathak has been consistent from last 6 years. Yeah, She is not leaving Borivali and Kandivali. Only reason because she is पहले having हमारे यहाँ such a पे number of good crowd. विलेपार्ले में विलेपार्ले, करती थी. संकल्प. बट संकल्प एग्जैक्टली. बट वही आपने जैसा बताया आशीष, आई थिंक इट्स अ नंबर गेम. हम लोग इतना बड़ा ग्राउंड हमारे पास है ही नहीं. तो यही आपका प्लस पॉइंट है. आपके बायो में और 2-3 चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है और हम इसके बारे में ज़रा बात करेंगे. सो एट नेशनल लेवल यू आर पार्ट ऑफ द एनआर इंडिया. इन बॉम्बे लोकल लेवल यू आर इन एरिया. आप जैन इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जीतू के अंदर भी इन्वॉल्व है. एक सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन, Yes. इसमें भी आप इन्वॉल्व हैं. Yes. तो बताइए ना, हाउ डू यू गेट. तो पहली बार तो आशीष आपको टाइम कैसे मिलता है? So, आप जिम जा रहे हो, आपके पास एक बिजनेस नहीं है, आपके पास 2-3 बिजनेस है, ऊपर से आप ये सोशल वर्क और चैरिटी वाला काम करते हो, तो हाउ डू यू गेट टाइम? So generally, Sangeet, what I believe and what I have seen is that this kind of work is of a passion. Interest होना चाहिए. इंटरेस्ट होना. जैसे आज मेरी बिल्डिंग है तो उसमें मैं बिल्डिंग में सेक्रेटरी भी हूँ. अच्छा. सब बिल्डिंग का काम होता है. एक होता है एसोसिएशन लेवल पे एरिया ग्रुप, वहाँ पे प्रेसिडेंट, तो वहाँ का काम होता है. एनआर इंडिया नेशनल लेवल तो ट्रेजरर, वहाँ का काम होता है. जैन यूथ ऑर्गेनाइजेशन आई एम जस्ट अ कमिटी मेंबर, सो वहाँ पे इतना काम नहीं है, बट यस होता है. But you have to be मीटिंग्स there, देयर आर मीटिंग्स. देन SSRF, I am the forefront trustee and committee member over there. So वहाँ का बहुत काम और ट्रैवल होता है. बट ये काम है ना, मेरा एक पैशन है, मेरा एक शौक है. मैंने मेरा बिजनेस जो है वो हो सके तो उसको ऑटो मोड पे डाल दिया है. ऑटो मोड पे ऐसे है कि आज मैंडेट ले लिया तो साइट चल रही है. क्लोज नीट सर्कल्स के लोगों को हर एक साइट पे डिप्लॉय कर दिया है. सो जो भी हो रहा है CRM के थ्रू हो रहा है, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द कॉल एंड जूम, एंड साइट पे हर क्लोजिंग हो जाता है, जिसके लिए मेरे को हर एक क्लोजिंग पे बैठना नहीं पड़ता है. सो इट्स हैपन एट द साइट इटसेल्फ, सो दैट्स डन. Finance है where I have to get personally involved. That is because important part. That's an important With part. any business. Any business. So there I have to get involved where, because I have to meet developer. I have to see whether the money which I am giving of my clients are secured or not. दो unsecured loan पर पैसा तो secure होना चाहिए. नहीं बिल्कुल correct. क्लाइंट हमारे भरोसे पे पैसे लगाते हैं, तो वो वहाँ पे एक जो है मेरा मेजर रोल प्ले हो रहा है. बाकी साइट से जो मैंडेट की अपने आप ऑटो मोड पे चल रही है, हाँ उसकी मीटिंग्स होती है. सेल को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या मार्केटिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजी करनी है, तो वो होती है लॉन्च के टाइम पे ज़्यादा. लॉन्च के बाद वो ऑटो मोड पे चलते रहता है और सब एक्टिविटी चल रही है और माल भी बिक रहा है. बट ये सब चीज़ ऐसा है कि मेरे को पैशन है, मेरे को शौक है कि आई गिव समथिंग, बिकॉज मेरे घर पे मेरे को संस्कार दिए हुए हैं. मतलब माई फादर इज वेरी एक्टिव इन ऑल दिस सोशल वर्क एंड यू नो. So let's talk about your family. Give us some idea ना, जो आपने भी फादर के बारे में बताया. तो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली. जो ये आपके संस्कार, और मैं खैर इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है कि जो भी हम आज हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से. Definitely, there's no कोई doubt about दो it. राय नहीं है. No. और संस्कार जो मिलता है, तो एजुकेशन और संस्कार दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है. Yes. तो लेट्स गो लिटिल ऑफ ट्रैक एंड लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली. इफ यू वुड लाइक टू शेयर हाँ, समथिंग. श्योर, डेफिनेटली. सो ऐसा है कि आज और अगर आपको थोड़ा और जाना है पीछे, तो आपके जो जिसको हम गांव बोलते हैं, तो वहाँ से भी रूट्स बताइए. तो जरा लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट आशीष, अदर देन एनआर इंडिया, अदर देन एलिगेंस. आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएं ना जो इंटरेस्टिंग है और इंस्पिरेशनल अगर है तो वो बताइए. So Sangeet, my life graph has been from this level to this level. I've seen that. So that graph is. I've seen you working in Vadhva. So I working remember in one Vadhva- of the 5-star hotel there was an event, Yes. and I was first time introduced to you. You were that time working for Vadhva. Yeah. So that working for Vadhva also graph was here. Before that, वो भी my आपने- graph was this. हाँ. So I was at this level, and then was Vadhva, then my business, and then I've reached at this peak.
So my journey throughout my career or throughout my this age, if you see, we come from very, I will not say a middle class, I will say a lower, So very humble background. very lower and humble background. So एक ज़माना ऐसा था कि जब we used to stay in Nala Sopara. Oh, So Nala Sopara, those days I'm talking about when I was in my 4th, 5th standard. correct. When my schooling was there, that time I was in Nala Sopara. I used to Correct. stay in Nala Sopara. Though Correct. born in Borivali, but then shifted to Nala Sopara. Correct. Due to some family crisis and all. Correct. So वो ज़माने में नाला सोपर में ऐसा था कि अगर आपको घर पे पीने का पानी चाहिए, बिकॉज पानी घर पे नहीं आता था, सो जब हम स्कूल जाते थे हम 2 गैलन लेके जाते थे घर से खाली, नल पे छोड़ के आते थे, जब स्कूल से रिटर्न आते थे 12 बजे वो लेके- बैग के साथ 2 गैलन लेके घर आते थे, तो वो पूरा दिन घर पे पानी पीने का चलता था. Oh. एंड एवरी फ्राइडे एंड मंडे 2 days एंटायर डे घर पे लाइट नहीं होती थी, बिकॉज उस जमाने में नाला सोपर लाइट का बहुत शॉर्टेज था, इलेक्ट्रिसिटी का. तो 2 दिन पूरा दिन लाइट घर पर नहीं होती. It was a very unorganized suburb of Yes, Bombay. yes. So वहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ. Then I shifted to Borivali in 97, 98 when I was in 7th, 8th standard. Dad was working in a ball bearing company. He was in chief accountant over there. Okay. Company got bankrupt. Still he worked there for 2 years without any single pay because he worked in a company for nearly 22 years in that same तो organization. बहुत बड़ी बात है ना आशीष. So he didn't wanted कि आज कंपनी तकलीफ में तो मैं तो क्यों मैं छोड़ूं? छोड़ दूं मतलब. मैं उनके साथ रहूँगा. तो 2 साल बिना सैलरी काम किया. आज लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, वो कंडीशन था हमारा. 2 साल तक अगर सैलरी नहीं आया तो घर कैसे चल सके. सो वहाँ जाके आज सोच लिया कि अब मेरे को जॉब शुरू करना पड़ेगा, घर को कहीं ना कहीं तो संभालना है. और वहाँ मैंने जॉब शुरू किया वाधवा में. दैट वाज माई फर्स्ट एंड लास्ट जॉब. सो दैट्स माई जर्नी इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ. आज हम पेरेंट्स का बात करते हैं तो जो भी हमको पेरेंट्स से सिखाया है वो संस्कार ही इंपॉर्टेंट है, जो उनसे हमको मिले और हमसे हमारे बच्चों को मिल रहे Very हैं. good. माई फादर एज अ नेचर दैट ही लाइक्स टू गेट इनटू दिस सोशल नेटवर्किंग मोर, यू नो. हिज नेचर इज दैट सोसाइटी इज गिवन यू एवरीथिंग. समाज ने हमको सब दिया है तो हमारा भी agree फर्ज with- है, हमको भी I- समाज को I- कुछ I- देना चाहिए. I agree with you आशीष. सो दैट्स हाउ माई आल्सो पैशन हैज बीन, यू नो, टू गिव बैक और समथिंग मेरे टू ख्याल से सोसाइटी. जो आपके फादर के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम श्योर नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट which he commands in the समाज. या वेरी, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर एंटायर समाज. वो बोला ना वो. ठीक है, चलिए. तो what are your hobbies अभी other than fitness which is there, Yes. which you all know, Yes. one of the fittest real estate businessman entrepreneur we have. Thank you. What other things keeps you excited? What are the other hobbies or likes what you like? Okay, so I like to travel a lot. So I travel to different destinations. I try to explore new places. I try to explore new destinations. और वहाँ पे जाके भी ऐसा नहीं है टूर गाइड को बोल दिया कि सुबह से सिटी टूर करवा ले और घूमते रहो. नो. सो व्हेनेवर वी एज अ फैमिली गो ऑन अ टूर, वी नेवर डू एनी सिटी टूर, वी नेवर डू एनी गाइडेड टूर बाय ट्रैवल एजेंट. तो आप खुद प्लान करते हो? हम खुद प्लान करते हैं. हमने खाली टिकट और होटल उससे करवा लिए, फिर हम वहाँ जाते हैं, सिटी पूरा एक्सप्लोर करते हैं. ऐसी ऐसी छोटी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई ना गया हो. सो वी ट्राई like to explore new places in that particular city. Adventurous kind of mindset. Yes. Another passion, my driving is my very good, you know, that's my passion. I love to drive cars. So, cars के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तो लॉन्ग ड्राइव जाते हैं मतलब? बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव जाता हूँ. मतलब कभी अभी मन किया तो मैं, ऐसा होता है तो बॉम्बे टू अहमदाबाद भी बाई रोड चला जाता हूँ. तो अभी कौन सी गाड़ी है आपके पास? नहीं बता. आजकल तो सब चेक फाइट हो ही गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बात करने की. बिकॉज दो चीज होती है, राइट? वन इज दैट यू लाइक कार्स, राइट? देयर देन दैट इज मोर यू वुड लाइक टू गो फॉर अ 4-wheeler or a Fortuner or a Thar, or some you like car also from a luxury point of view. So you have both the taste? Both the taste. So if you have a Audi Q7, I have a BMW 5 Series, and I have a Mercedes C-Class which my wife uses, and another I have a Kia Carnival limousine. Very good. So all segments, So because गाड़ियों का शौक है, गाड़ियों का शौक है. So I try to do it that मैं हर 3 साल में गाड़ी चेंज करूँ. मेरे को याद है कुछ साल पहले हम दुबई गए थे. 40-50 ब्रोकर्स ट्रैक करके हमारा एक एसोसिएशन है, एंड दैट इज अगेन दैट्स व्हेन आई बिकेम, वी स्पेंड फ्यू आवर्स टुगेदर. तो थोड़ी और दोस्ती मेरी आपकी डीप हुई उधर. तो ये भी मैंने आपका थोड़ा देखा है और समझा है कि अदर देन बीइंग सोशल, अदर देन बीइंग इन्वॉल्वड इन एसोसिएशन, यू आल्सो एंजॉय पार्टिंग एंड यू नो, लाइक अपने दोस्तों के साथ you enjoy all that. It's
it's second nature to you. Yes, that's I feel that's the best networking what one can have. आज एक ड्रिंक पे दोस्तों के साथ बैठे, चैनल पार्टनर के साथ बैठे, डेवलपर के साथ बैठे, देन दैट कंफर्ट इज डिफरेंट. आप किसी के ऑफिस में जाओ, सूट बूट में बैठो, उससे बात करो एक चाय के ऊपर, तो जो डेवलपर और चैनल पार्टनर जो खुल के बाहर आना चाहता है शायद से नहीं आएगा. और आप किसी को बाहर ड्रिंक पे मिलो तो अलग से बाहर आता है. मैंने आशीष को 3 दिन पहले फ़ोन किया कि आशीष मेरे को एक पॉडकास्ट करना है और भाई तू आजा. तो विदाउट एनीथिंग इन वन कॉल ही सेड आई विल कम, एंड वो भी बोरीवली और वो भी वर्किंग डे पे. लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएशन नाउ बिकॉज एरिया बीइंग द ओल्डेस्ट. क्या क्या सीखा है आपने एरिया से, एनआर इंडिया से? व्हाट हैज दैट एडेड इनटू योर पर्सनालिटी? सो अगर आप संगीत देखोगे ना, एरिया ग्रुप ने ना हमें बहुत कुछ सिखाया है. क्योंकि आज इंसानों ने लाइफ में एक फियर जो होता है ना, 2 चीज़ का फियर होता है. जो मेरे को तो एक दोनों चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा था. एक, कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ, मेरे को बोलो ना कि आप बंजी डाइविंग करो, बंजी जंप करो, मैं नहीं कर पाता. आई एग्री विद यू. आई कैन नॉट डू इट. मुझे अभी भी डर है तो. आप मेरे को कोई राइड्स बोल दो बड़ी बड़ी करने डिज्नी में जाके, मैं नहीं कर पाता हूँ, आज भी नहीं कर पाता हूँ. समझा. और दूसरा फियर होता है इंसान को स्टेज फियर. बिल्कुल करेक्ट. तो मैं आप करो इसके ऊपर बात, फिर मैं आपको बताऊंगा. स्टेज फियर इज द मोस्ट क्रूशियल फियर व्हाट यू हैव. सो आज पहले ऐसा था कि मेरे को ना माइक पकड़ के कुछ बोलना, बोल भी थे ना कि कुछ बोल दो तो यार नहीं होता था बोलने. मैं खाली बोलता था हेलो हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग इन द इवेंट, और खत्म. आज एरिया ग्रुप में हमें ना एक जो आई एग्री विद यू ढल के बाहर आए हैं ना, वो सब एरिया ग्रुप का देन है. आज हमको एरिया ग्रुप में कहते हैं कि आप अगर एसोसिएशन के पार्ट होना तो आपको हर मेंबरों को है ना वहाँ पे देखा जाता है कि उसका ग्रोथ कैसे हो, उसका एजुकेशन कैसे बढ़े. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. इफ यू हैव कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, एरिया ग्रुप सीज टू इट दैट यू रीच टू द हाईएस्ट पीक ऑफ एरियाज एसोसिएशन. दैट्स व्हेयर आई एम राइट नाउ द प्रेसिडेंट. कमिटी मेंबर से ज्वाइन करना, 6-8 सालों में प्रेसिडेंट बनना. 10 साल पहले यू नेवर थॉट कि यू गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ एनआर इंडिया, यू नो एरिया ग्रुप. एरिया ग्रुप. सो और ना ये भी सोचा था कि एरिया ग्रुप प्रेसिडेंट बन के एनआर इंडिया का ट्रेजरर बनूंगा, तभी ऐसा कोई थॉट ही नहीं था. बट आज एरिया ग्रुप ने जो सपोर्ट दिया, जो पीछे से कंफर्ट दिया, जो चीज़ें सिखाई, वहीं से हम आज कमिटी से ट्रेजरर, ट्रेजरर से वीपी से प्रेसिडेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड देन नाउ एट एनआर इंडिया ट्रेजरर. एंड एनआर इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ 3 different things. One, overall growth and personality development of each and every member. And networking, Ashish. Remember, second, networking. There are 44 associations across India who's part of NAR India. Good. So here I will tell you, थाना के जो इवेंट होते हैं, जो 3 से 4 इवेंट हुए हैं. So that's where my thing started. I got a call from राजेश गाडगिल कि संगीत थाना में इवेंट हो रहा है. तो मैं कहा मैं तेरा वो फेसबुक पे कर दूंगा मार्केटिंग, बिकॉज आई वाज क्वाइट एक्टिव इन डिजिटल मार्केटिंग. तो मैं कर दूंगा. बोला नहीं मार्केटिंग नहीं करना है, वी आर डूइंग अ प्रोग्राम कॉल कल आज और कल. इट्स क्या बोलते हैं, पैनल डिस्कशन, एंड वी वांट यू टू मॉडरेट दैट सेशन. और जो अभी तुमने ये पॉइंट बोला आशीष, मैं इतना नर्वस था. और करीब 350-400 लोग थे थाना के इस सो कॉल्ड कन्वेंशन पे. और जैसे सब डाइस पे बैठे और मैं डाइस की तरफ गया और मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे यहाँ बैठा हूँ, और वहाँ पे मैंने 400, मैं ब्लैंक हो गया. सो स्टेज फियर बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा स्टेज फियर है. फिर मैंने वो कंपेरर को बुलाया, लड़की को बुलाया, मैंने कहा डार्लिंग इधर आ डियर, ये ना आई एम गेटिंग स्केर्ड. बोला सर आई हैव अंडरस्टूड, एक काम करो, आई विल गिव यू योर ईयर माइक समथिंग इट्स कॉल्ड, और आप फ्लोर से ही मॉडरेट करो. उसके बाद मैंने 3 या 4 इवेंट्स मॉडरेट किए, और चारों के 4 पैनल पे आपके एनआर इंडिया के ही सारे सो कॉल्ड लीडर्स आए थे. तो जो तरुण भाटिया, सुमंत रेड्डी, सबसे मेरी दोस्ती अच्छी हो गई. और तब मैंने यहाँ देखा और मेरे को ये समझ में आना शुरू हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो एसोसिएशन. एसोसिएशन आपके लिए क्या कर रहा है. इट्स अ टू-वे स्ट्रीट, ऑफ कोर्स. तो यू आल्सो गेट बेनिफिट बिकॉज यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन से कैसे नेटवर्किंग इतना अच्छा हो जाता है. तो आज इफ आई हैव एनी सिंपल इंक्वायरी ऑफ अ लैंड और ऑफ एनी हाई टिकट साइज लग्जरी अपार्टमेंट और ऑफिस एनीथिंग, I have a connect of 44 association in my mobile. Just to dial a call, just dial. Very interesting. And I can get any access so easily that one cannot imagine also. और क्योंकि आप एक एसोसिएशन के
कमेटी मेंबर हो, आप इतने सालों से जुड़े हुए हो, Yes. तो वो एक ट्रस्ट, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑफ कोर्स। आज ट्रांसपेरेंसी। आज वहाँ के कोई एसोसिएशन मेंबर को अगर किसी क्लाइंट को ऐसा है कि बॉम्बे कुछ बड़ा टिकट साइज लेना है, दे डोंट थिंक ट्वाइस, वो खाली नंबर पास ऑन कर देते हैं कि आशिफ भाई यार देख लेना, क्लाइंट बहुत अच्छा है मेरा और आप ट्रांजेक्शन कर लेना। बिजनेस में भी फर्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड अगर मैं एरिया ग्रुप का हम जो बात कर रहे थे ना, बात करूँ तो ऐसा है कि एरिया ग्रुप में हमें सिखाया वो गया है कि इधर एथिक्स, रिलेशन, ट्रस्ट एंड फेथ ये कभी लाइफ में छोड़ना मत। वेरी गुड। एंड इन आवर एसोसिएशन वी ऑलवेज सी दैट वी डू समथिंग ऑन द अदर फॉर द मेंबर। जैसे हम हर साल एक मानसून पिकनिक करते हैं जहाँ सब मेंबर एक साथ बाहर जाते हैं, 3 दिन साथ में है, तो एक वो नेटवर्किंग बॉन्डिंग अलग होता है। हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन करते हैं, विच वी डिड लास्ट ईयर, विच वॉज द बिगेस्ट कन्वेंशन ऑफ मुंबई। Area has been doing conventions at all. Every year the scale goes up. goes up. So last year we did in Jio, which is आज कोई ब्रोकर्स एसोसिएशन, चैनल पार्टनर का एसोसिएशन Jio जियो में नहीं में करेगा। कन्वेंशन करना सोचना, ये एक बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे हमने किया। सो वी हैव ऑलवेज ट्राइड दैट वी शुड कम आउट विद सम डिफरेंट माइंडसेट, सम डिफरेंट आइडियाज वेयर वी ट्राई एंड सी कि हम हमारे दूसरे चैनल पार्टनर को साथ में लेके आगे चले। करेक्ट। और एक चीज़ मैंने जो थोड़ा ऑब्जर्व किया है और मैं देखता रहता हूँ और मैं आया भी हूँ, आप एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो। यस। तो एरिया रेगुलरली सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहता है। Generally, 2 months once we have an education seminar. We call it as a classroom session. We have our own area office, which is in Borivali, roughly around 800 square feet, 1000 square feet office. Where what we have done is that हमने एक उसको boardroom style भी बनाया and we have done a modular furniture in such a fashion that that convert into a classroom as well. अरे वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम हर 2 महीने में एक क्लासरूम सेशन करते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी आज लॉ, सो कोई लॉयर को बुला लिया, व्हाट आर न्यू टर्म्स, व्हाट आर न्यू लॉ कमिंग अप फॉर रियल एस्टेट। कभी हमने कोई बीएमसी ऑफिसर को बुला लिया कि क्या नए डीसीआर है, कोई लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट को बुला लिया। अभी हमने बीच में एक सेशन किया था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, दैट इफ यू गिव फ्लैट ऑन रेंट एंड ऑफिस इज ऑन रेंट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ चैनल पार्टनर। सो हम हर 2 महीने में एक ऐसे क्लासरूम सेशन करते रहते हैं। एक आपका ब्लड कैंप भी बहुत फेमस है। Yes, so we always do blood donation camp every year. We have started a new concept in our association जहाँ हम हर मेंबर के फैमिली इंक्लूडिंग मेन मेंबर उसका हेल्थ चेकअप करते हैं। क्या बात कर रहे हो? Yes, so right now we have a health checkup camp on 28th Feb, 1st and 2nd March, 3 days health checkup camp. जयेश व्यास जो है, आई थिंक ही इज डन गुड नंबर ऑफ ब्लड डोनेशन। आई कीप ट्रैक के 2 दोस्त मेरे को इस वक्त याद आ रहे हैं। हाँ. एक राम प्रसाद पाड़ी Yes. जो हमारा रियल एस्टेट गुरु है, Yes, फ्रॉम yes. टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, Yes, he is a super technology. रियलिटी गुरु बोलते हैं Yes, उसको हम। yes. और एक आपके विनोद ठक्कर Yeah. जिन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ब्रोकर की पाठशाला करके एक वो concept एजुकेशन निकाला का है। भंडार है, विनोद भाई एजुकेशन का भंडार। तो ये दिस इज व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ दैट एसोसिएशन व्हिच बिकम सो स्ट्रांग। एक चीज़ मैं और नोटिस किया है, जैसे दीपक शर्मा है, आकाश है, आपके ये मेरे ख्याल से ये शायद ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस भी शायद आपके तरफ से शुरू हुआ है। Yes. कि आपका एक कांदिवली में ऑफिस है, मलाड में ऑफिस है, Yes. जू पे ऑफिस पे है, ऑफिस है। मेरे ख्याल से वैभव का 10th रोड पे ऑफिस है, Yes, काफी मेंबरों का बीकेसी में ऑफिस है। बीकेसी में ऑफिस है। So that's how people have started growing their self कि आज बोरीवली भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो अब दूसरा डेस्टिनेशन लेते हैं, दूसरा स्टेशन लेते हैं, दूसरा सबब लेते हैं, फिर बीकेसी तक पहुँचे क्योंकि बीकेसी मार्केट इज एंड फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो वहाँ जाए, वहाँ काफ़ी लोगों ने ऑफिस शुरू की हुई है। सो पीपल आर डूइंग रियली वेल राइट नाउ एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसे ग्रो हुई है इतने सालों में, और आज हम जो बात करें इतने ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो रियल एस्टेट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस इकोनॉमी राइट नाउ। एक मार्केटिंग सोल सेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट था जो आपने किया। आज जो एनारॉक और जैनडू कर रहा है वो अगेन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ट्रू, आपका वो टाइम इट वाज मोर लाइक फैमिली। Yes. ये यहाँ पे तो 600 700 800 1000 मेंबर हैं। Yes. कुछ में सिंस यू आर अ मेंबर ऑफ, आई मीन यू आर होल्डिंग अथॉरिटी role and a position in NAR India as well as in the 2 points here. यस, One where there is technology like no broker जो सर्विसेज दे रहे हैं, Yes. और ब्रोकर नो ब्रोकर नाम itself थोड़ा सा मेरे को लगता है इज नॉट अ वेरी गुड नेम, बट ठीक है, इट्स अ इंडिया इज फ्री इंडिया, तो आप कर सकते हो। Yes. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दीज
so-called PropTech companies who are not charging not charging any brokerage. उसके बारे में आपकी क्या राय है? So, Sangeet, I'd like to correct you here. No broker ad ऐसी कर रहा है कि हम कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं. We have evidences, we have proofs, we have testimonials. No broker ने डेवलपर से बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव हर जगह ब्रोकरेज ली हुई है. सो दे टर्म देयर कंपनी एज नो ब्रोकरेज. उन्होंने ब्रोकरेज हमारे उसका टेस्टिमोनियल्स है, हमारे पास उसके प्रूफ्स भी है. और मैंने आपके 2-3 हमारे so that's why NR India we have started a concept called Yes Broker. आशीष, घर एक इमोशनल परचेज है. Yes. और आज हम इतनी बड़ी बात, इतना सब मार्केटिंग बजट होने के बावजूद भी 60% 70% जो है अभी भी चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स के थ्रू बिकता है. एक कंप्लेन है, अगेन यू आर द राइट पर्सन टू एड्रेस इट, कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ दिस बिग गाइज, बट ऑल द बिग 4-5, और ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है. सो आई विल पॉसिबल कि मैं एज अ ब्रोकर मैं उनका एक कांदीवली के प्रोजेक्ट पे मैं एक क्लाइंट को लेके गया. ठीक है. तो उनके पास वो डेटा आ जाता है. 3 महीना हुआ, समझो डील नहीं हुई, बट उनके पास अभी और कोई प्रोजेक्ट है, समझो कि कांदीवली में हो गया. तो फिर वो उनको पिच करते हैं. तो इसके बारे में व्हाट इज योर टेक? सो ये चीज़ हमने ना काफ़ी हद तक डेवलपर के एसोसिएशन में भी बात की हुई है. वी स्पोक अबाउट दिस इन रेरा ऑल्सो, बट उसका है ना कोई तोड़ या उसका कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा है. रीज़न क्या है कि आज ये डेटा मार्केट इतना बड़ा हो चुका है ना, बहुत बड़ा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है. आज हर डेवलपर के पास सब क्लाइंट का डेटा एक्सेसिबल इजीली है. और आपको जो डेटा बाहर मिलता है ना परचेज करने के लिए, वो कितना आपको कौन से प्रोजेक्ट का डेटा चाहिए वो मिल जाता है इजीली. 1,000 2,000 5,000 रुपये मिल जाता है. रोज व्हाट्सएप पे आता रहता है. दैट्स व्हाट. तो उसको कंट्रोल करना किसी के बाहर का. बट क्या है कि ऐसे सिनारियो में भी चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर, रियल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि जिसको एक घर लेना है ना, एक घर कैसी चीज़ है, एक इमोशनल चीज़ है. वही बात है ना, एक ट्रस्ट की चीज़ है कि यार डेवलपर तो 1000 ऐड करता है, इतनी मार्केटिंग करते हैं, इतना सेल्स स्टाफ बिठाया है, पर क्लाइंट जब तक हमारे मुंह से नहीं सुनता, नहीं प्रोजेक्ट अच्छा आप ले लो, तब तक जाके वो टोकन नहीं देता. तो आशीष, आई कांट रिमेंबर वेदर यू वर देयर और नॉट. आई वाज देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड. क्रेडाई एमसीआई का भी एग्जीबिशन हुआ था. तो they had on the first day they had a ambassador day. Yes, I was. जैसे भी आपने बताया कि आपके मुंह से सुनता है तो बायर को कन्विंस होता है. तो हम पहले ब्रोकर, दलाल, चैनल पार्टनर, अभी हम एम्बेसडर्स हो गए हैं. तो यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड डेवलपर्स ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट, द रोल एंड द कंफर्ट एंड द ट्रस्ट व्हाट क्लाइंट हैज ऑन चैनल पार्टनर्स का. जो रोल पे उनका जो ट्रस्ट है ना बहुत ज़्यादा है. आज जो डेवलपर भी समझ रहे हैं, इसीलिए आज डेवलपर भी पहले क्या बुलाता था, यार ये दलाल है 2% का. एग्जैक्टली. वहाँ से वो आया ब्रोकर बन गया. करेक्ट. वहाँ से आया वो रियल्टर बना, वहाँ से आया वो चैनल पार्टनर बना, वहाँ से आज जो एम्बेसडर बना. सो दे ऑल्सो वांट अस टू अपग्रेड अस, बिकॉज दे ऑल्सो सीइंग दैट व्हाट इज द रोल वी आर प्लेइंग इन दिस ट्रांजेक्शंस. बट आशीष, जैसे बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जब अथॉरिटी आ गई है, आपका जब एक एम्बेसडर बोलते हैं, तो डोंट यू थिंक फिर देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑन यू? यस. सो क्या हो गया, पहले ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. क्यों? क्योंकि तभी रेरा नहीं था. रेरा आने से क्लैरिटी इतनी बढ़ गई है ना कि हमारे शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम रेरा हैज ऑल द आईज ऑन अ प्रोजेक्ट, taking care of the responsibility. रेरा हैज ऑल द आईज ऑन द प्रोजेक्ट एंड डेवलपर, दैट क्लाइंट इज नॉट सफरिंग नाउ. पहले ऐसा था कि प्रोजेक्ट चालू होता था, 10-10 साल तक बनता नहीं था, बंद पड़ जाता था. सो तब हमारा रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्लाइंट ने किसके भरोसे लिया था, हमारे बोलने पे फ्लैट लिया था, हमारे बोलने पे इन्वेस्टमेंट किया था. तो वी वर मच मोर आंसरेबल ड्यूरिंग दोज डेज. आज तो ऐसा कि रेरा है, अप्रूव्ड है, सब कुछ है, तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मॉरल नहीं है जितना पहले था. As president of area, as treasurer of NR India, and so we have, by the way, crossed 1,50,000 views already in 8 podcasts. Wow. So I'd like to pause here, Sangeet. आपने मेरे बारे में तो काफ़ी पूछ लिया, but what I have seen you being in real estate and your always passion, more was film industry. That क्या अभी आप जूस की भी है तो. And my father being a doctor. And you had that good connect also in that industry.
सो आपने जो सडन जो स्वैप किया रियल एस्टेट से इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इवेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, वो आपने एक जो लीप लिया ना, बहुत अच्छा लीप लिया। और उससे क्या हो गया कि आज वो देख के काफ़ी लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी रियल एस्टेट में भी। और आशीष, जैसे यू आपने खुद बोला ये, आई थिंक ये पैशन की बात होती है। और सबके पास उतने घंटे हैं, आप वो घंटे कैसे यूज करते Utilize हो। करो आपको। और जैसे तुमने बताया ना आशीष, जैसे कि आपको टायर्डनेस फील नहीं होती है, यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई थिंक इफ यू आर पैशनेट एंड यू आर गेटिंग सक्सेस, you are getting recognition, so there is a continuity. I think that it is the best this thing which is there. Now tell us, what are your guides, your tips? You are a senior person now from authority as president of NAR India, treasurer of president of area and treasurer of NAR India. Yes. What are the tips you would like to give to our broker friends? और ये होपफुली ये हमारा ये वायरल करने वाला हूँ मैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया। प्रेसिडेंट हियर विद अस टुडे, सो वी आर गोइंग टू दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल dignitary on our show, so we will try to make this viral. Yes. So what tips do you want to give it to your? आपने आप पूछा, पर मैं अभी बोलने ही जा रहा था, मेरे माइंड में था कि आई वांटेड टू गिव अ मैसेज टू आवर ब्रोकर कम्युनिटी, स्पेशली ब्रोकर कम्युनिटी। यस, ब्रोकर कम्युनिटी। सो मैं हर ब्रोकर को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई एसोसिएशन के पार्ट बनो। आप जो स्टेशन पे रहते हो, जहाँ काम करते हो, नहीं बोलता हूँ कि खाली एरिया ग्रुप का पार्ट बनो, पर आपके यहाँ पे जो भी एसोसिएशन का पार्ट बनो, क्योंकि कलेक्टिवली यू कैन रेज अ वॉइस इफ देर इज इनजस्टिस, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग फ्रॉम द डेवलपर साइड और फ्रॉम द अथॉरिटी साइड और फ्रॉम द रेरा साइड। जैसे कि आज 2019 में रेरा ने एक क्लॉज पास किया था 15A, जो अग्रीमेंट में डालना था मैंडेटरी कि यू कैन पुट इन योर ब्रोकरेज क्लॉज इन दैट अग्रीमेंट, बट आज तक 2024 5 साल 6 साल चले गए, हुआ नहीं था। NAR इंडिया केम अप, दे पुट देयर वॉइस कलेक्टिवली 44 एसोसिएशन। आज NAR इंडिया में महारेरा में NAR इंडिया का एक सीट है कॉल SRO, जो कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट में, कोई भी चैनल पार्टनर का सीट SRO में नहीं है। विच द ओनली सिटी, ओनली स्टेट वेयर वी हैव अ सीट इन महारेरा। तो आज एक एसोसिएशन एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में एज अ ब्रोकर कम्युनिटी। अगर आप वहाँ पे जुड़े तो आपका एक लाइफ का अपलिफ्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। सो आज एक आप कोई एसोसिएशन में जुड़ोगे तो ये सब बहुत उसके मेजर फ़ायदे, छोटे मोटे फ़ायदे तो बहुत है। जैसे वो इवेंट्स में जाओ, पहला लॉन्च होता है तो आपको सबसे पहले पता चलता है एसोसिएशन को, क्योंकि डेवलपर को भी नंबर्स चाहिए कोई भी इवेंट के लिए। तो जब तक एसोसिएशन के पास नहीं जाता तब तक नंबर्स नहीं मिलते। तो ये सब तो एक आप बोल सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट है, इवेंट्स में मिलना, पहला अपॉर्चुनिटी मिलना, बिजनेस के लिए ग्रोथ होना। पर ये सब जो दूसरे जो ग्रोथ है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर मेंबर, हर ब्रोकर कोई ना कोई एसोसिएशन में प्लीज़ जुड़ो। आशीष, यहाँ पे एक और सवाल, सिंस अगेन वी हैव अ डिग्निटरी होल्डिंग अ पोजीशन, क्या ब्रोकर के या क्लाइंट या ब्रोकर के कोई जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, वो भी आप सॉल्व करते हो? यस, सो वी एट एरिया ग्रुप वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ग्रीवियस डिपार्टमेंट। हमारे कोई भी चैनल पार्टनर जो ब्रोकर हमारे एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, कोई डेवलपर जो उसका डिस्प्यूट हुआ है और कोई डेवलपर उसको ब्रोकरेज नहीं देता है, and if we find, we call for all the authenticity whatever is required in terms of documentation, client testimonies and everything, and then we feel that अगर वो डेवलप हमारा जो चैनल पार्टनर, हमारा जो मेंबर रेस्टोरेंट का वो सही है, डेवलपर गलत है, we as a committee go to developer office, we speak to them, we see that why that is stuck and we try and recover that money from the developer. So आशीष, बहुत अच्छा पॉइंट आप बता रहे हो। और ये अगेन जैसे आशीष ने ये बताया, और मैं बहुत सारे इनके इवेंट्स और सेमिनार्स में मैं जा चुका हूँ, हमने खुद इवेंट को कवर किया है। और मेरे ख्याल से ये आज भी ये थोड़ा सा लैक हो रहा है कि आप मांग तो रहे हो लेकिन आप खुद एक एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिकॉज नंबर गेम है ना भाई। यस, इट्स अ नंबर गेम। आज NAR इंडिया 3 चीज़ों के लिए नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है। वन फाइट इज़ वन नेशन वन लाइसेंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोई भी डॉक्टर होता है कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, लॉयर होता है कहीं भी कोर्ट में जाके खड़ा रह सकता है,
इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो कहीं भी कोई भी सिटी में जाके अपना पॉलिसी बेच सकता है. देन व्हाई कांट अ ब्रोकर, अ चैनल पार्टनर, रियल्टर सेल अ प्रॉपर्टी अक्रॉस इंडिया? आज मेरे को गोवा जाके बेचना है कुछ तो वहाँ का रह रहा लूँ, दिल्ली जाके बेचना है तो वहाँ का रह रहा लूँ, तो हर सिटी में को कुछ काम कर रहा है तो वहाँ का अलग लाइसेंस लूँ. और आज ही मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे भी पहले हमने बोला कि हम आज से 10 बाई 12 15 साल पहले हम बॉम्बे के अंदर 3-4 ऑफिस खोल रहे थे. अब मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग मल्टीपल सिटीज में ऑफिस खोल रहे हैं. तो आपको हर सिटी में रह लेना है. सो एनआर इंडिया इज फाइटिंग वेरी एग्रेसिवली विथ नेशनल लेवल एट विथ मिनिस्ट्रीज एंड ऑल दैट हमको वन नेशन वन लाइसेंस चाहिए. वी ऑल्सो फाइटिंग मोर एग्रेसिवली फॉर जीएसटी. आज हमें 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ रहा है, तो जिसके कारण काफ़ी डेवलपर्स को हिचकिचाहट होती है ब्रोकरेज देने के टाइम पे कि 18% जैसे, जबकि उनको सेट ऑफ नहीं है कोई कारण से बिकॉज ऑफ द स्कीम्स. सो हम जीएसटी के लिए फाइट करें कि जीएसटी हम क्या रिड्यूस करा सके. सो देर आर मोर सच इनिशिएटिव विच एनआर इंडिया इज डूइंग एट नेशनल लेवल, इन एरिया इज डूइंग एट स्टेट लेवल. बट ये सब चीज़ों के लिए नंबर बहुत ज़्यादा नंबर जरूरी गेम है. है ये बहुत. सो मैं हर एसोसिएशन के मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एसोसिएशन को बोलो कि एनआर इंडिया का पार्ट बने, और लोकल लेवल पे बोलूंगा ब्रोकरों को कि आप कोई ना कोई एसोसिएशन का पार्ट और बने. आशीष ये पिछले स्पेशली पिछले 4-5 साल में मैं देख रहा हूँ जैसे योर ओन growth I have seen. So there is more involvement also happening. Yes. I've seen this in the last 5-6 years that there is a lot of involvement happening. Both जैसे आपने कहा from a local level, which could be area, which could be smart, which could be trek, and one is on a national level, which is NR India. तो ये मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरी एक फैमिली बन गई है. Yes, definitely. आपके अगर 200-300 सारे के सारे 40 और प्लस वॉट एवर एसोसिएशन है, आप जब कन्वेंशन करते हो, आपका जो कन्वेंशन का स्केल है, आई हैव अटेंडेड 1 or 2 कन्वेंशंस. इट्स अ वेरी you also bring in motivational speaker. Anupam Kher, Ashish Vidyarthi, Ashutosh Rana. We have got a lot of speakers in terms of motivation and also a lot of international delegates also. So right now we have an India convention happening in Delhi, which is on 21st and 22nd March. Yes. Again, we are trying that we will have majorly all the bureaucrats and housing ministers and everybody attending this conference in Delhi, which is at which is at Marriott Delhi and Aerocity. Very good. I also will make it a point to join. और दोनों चीज़ हो रही है आशीष. एक रियल एस्टेट एसोसिएशंस बहुत एक्टिव हो गए हैं. सिमिलरली जो डेवलपर एसोसिएशन है वो भी बहुत एक्टिव हो गए. तो बोथ आवर क्रेडाई एमसीएचआई एंड नरेडको महाराष्ट्र. As an office bearer, what kind of relationship do you have with Naredco and CREDAI? So right now, if you see, there are 3 major developer association. What we called as is one is Naredco, one is CREDAI MCHI, and third is BDA, which is Borough Movement Development Association. So आपके सबब्स में ज़्यादा एक्टिव है? ज़्यादा एक्टिव है. उसमें बहुत सारे डेवलपर्स मेंबर है वो एसोसिएशन के. सो हम तीनों एसोसिएशन का वी हैव अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद ऑल दिस 3 एसोसिएशंस कि वो कोई भी इवेंट करे, कोई भी कॉन्फ्रेंस करे, कोई भी एग्जीबिशन करे, दे गिव अस अ स्टॉल एज एन एरिया ग्रुप, एज एन एसोसिएशन. वेरी गुड. सो वी हैव दैट बायलैटरल एग्रीमेंट. आज इससे क्या हो गया कि डेवलपर को ट्रस्ट एक एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक दूसरे से एक पेपर पे जुड़े हुए, दिल से तो जुड़े हुए थे, काम से जुड़े हुए थे, आज हम ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे भी जुड़े हुए. बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड. सो एक कनेक्ट जो डेवलपर के एसोसिएशन है वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है उन टर्म से. तो हमारा भी कोई भी इवेंट होता है, दे मेक इट अ पॉइंट दे अटेंड दैट इवेंट, चाहे वो क्रेडाई नेशनल प्रेसिडेंट हो, चाहे क्रेडाई एमसीएचआई. नहीं, ये मैं देख रहा हूँ चेंजेस आ रहे हैं. और आपके भी सारे इवेंट्स पे डेवलपर्स ऑफिस बेयरर्स आर अटेंडिंग. एंड ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज है. लाइक टू पॉज यू हियर, हमारे एरिया ग्रुप में ये कल्चर रहा है, जब भी चेंज ऑफ पोस्ट होता है, चेंज ऑफ गार्ड होता है, तो एन इंडिया मतलब एरिया ग्रुप का प्रेसिडेंट जब चेंज होता है तो उसको जो इंस्टॉल कराते हैं उसका जो ऑनर होता है, इट ओनली हैपेंस विद CREDAI MCHI president. I remember. Always. I was not sure always or not. Always. But I have seen this happening last time, 2-3 times. Always. So who installed you when you became the president of area? So when I became Romel. Dominic Romel. He was there. Earlier Dhawal Ajmera,
मतलब उसके पहले बमन ईरानी. Boman. So all the dignitaries of MCJ Academy make it a point to attend our event of change of guard installation ceremony. So that becomes emotional connect मिल जाता है. Yes. आशीष बिजनेस जो है Yes. अभी मोबाइल पे हो गया है. मोबाइल 1.5 से 2 लाख का मोबाइल हो गया. आईफोन है, सैमसंग है, वो फोल्ड है. Yes, yes. तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या रोल है आपके हिसाब से रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में बहुत बड़ा रोल है. पहले ऐसा था कि एक प्लान का जेरोक्स मिलता था, उस पर जाके आप माल बेचते थे. फिर वो जेरोक्स से आया ब्लैक एंड वाइट से कलर पे, फिर कलर प्रिंट आउट आया. उसके बाद आया कि आपको डेवलपर एक 2 पेज का लीफलेट बना के देता था करेक्ट कि भाई ये हमारा ब्रोशर है. करेक्ट. फिर ट्रेंड आया कि एक बड़ा सा डायरी जैसा ब्रोशर, बहुत अच्छा वाला, हाईफाई बड़ा वाला brochure. बड़ा वाला वो लेके. तो क्या था, वो कैरी करना, जाना, दिखाना. आज ये इतना इजी हो गया है, एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल. पेन पीडीएफ, ड्राइव आया बीच में, पेन ड्राइव, सीडी आया, पेन ड्राइव CD आया, आया. सब कुछ आया. ईमेल आया, ईमेल पे भेज दो. ये व्हाट्सएप, डिजिटल, सोशल मीडिया, आज चीज़ें इतनी आसान हो गई है. आज किसी को अगर कोई ब्रोशर भेजना ना, पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दिया, इंसान ने पूरा प्रोजेक्ट स्टडी कर लिया, शाम तक तो बोल देता है यार मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, पीडीएफ पे कल जाके विजिट कर लेते हैं. स्पीड बढ़ गई है. स्पीड बहुत बढ़ गई है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास पीडीएफ नहीं है, कुछ नहीं, गूगल पे जाओ, सर्च मारो, जो चाहिए हर चीज़ अवेलेबल है. सोशल मीडिया पे आज डेवलपर इतने एक्टिव हो गए, जैसे चैनल पार्टनर भी उतने एक्टिव हो गए कि खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक, गूगल, इंस्टा एड्स करते हैं. तो उससे आपका लीड जनरेशन बहुत अच्छा हो गया है. उससे आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण आपका सेल टर्नओवर काफ़ी अच्छा बढ़ गया है. पहले ऐसा था कि आप एक दायरे में थे, करेक्ट. अपने क्लाइंट को सर्व किया, उसके रेफरेंस आपको दूसरा मिला, उसके रेफरेंस और 2 मिला. तो तभी पहले रेफरल बिजनेस था. अब पहले हमारे न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड डालो, छोटे से क्लासीफाइड ऐड डाल दी, Classified वो हो गया. अभी ओपन हो गया. आप खाली डिसाइड करो आपके कौन से जोन में करना है, क्या एज फैक्टर में करना है, क्या इनकम आप क्राइटेरिया बहुत में सारे करना है. पैरामीटर्स डाल दो एंड यू कैन ब्लास्ट व्हाटएवर प्रोजेक्ट, व्हाटएवर साइट, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू वांट टू. करेक्ट एंड उससे लीड जनरेशन काफ़ी अच्छी होती है, उससे सेल भी काफ़ी अच्छा होता है प्री लॉन्च स्टेज में, लॉन्च स्टेज में. करेक्ट. सो उससे सेल वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है. तो आशीष अगले 5 साल क्या लगता है आपको रियल एस्टेट? If you ask me honestly, I feel that there is little slowdown from last 2 months. There is slowdown. There is a slowdown. Agreed. We should not go overboard. That's a fact of the life. There's little slowdown from last 2 months. This slowdown we are seeing at association level and national level कि ये शायद से अगले 2-4 महीने 5 महीने शायद से रहेगा. बट इंडिया बीइंग एन इमोशनल कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, करेक्ट. क्योंकि प्रॉपर्टी में हमारे घर पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट होता है. एक्सेप्टेड, पॉइंट टेकन. तो वो कारण ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं. और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी चल रही है ना, ये ज़्यादा लंबा We have a चलेगा very नहीं. strong सेकंड central ग्रोथ government. स्टोरी जो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो तरीके से इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, जो तरीके से आज हर एक इंसान को घर देने का उनका जो प्लान, जो सपना है, जो तरीके से वो सोच रहे कि इकोनॉमी को इतने ट्रिलियन पहुंचाना है, यू नो, आज पुटिंग दैट एफर्ट्स, गिविंग दैट थॉट, गिविंग दैट विजन of our prime minister also, if you see, we going to play a very important vital role in terms of this economy. टोटली एग्री विद यू. So आज अगले 2 साल 5 साल रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. और इतनी, बहुत बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं. that's what, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था. इतनी एमएनसीज, इतनी आईटी कंपनीज, इतने फंड हाउस, इतनी ब्रांड्स जो आ रही है. पहले आपने कभी सोचा था कि एक जियो जैसा मॉल बनेगा बीकेसी में जहाँ दुनिया की हर इंटरनेशनल ब्रांड मौजूद होगी? कभी था? इंडिया में शायद से एक दिल्ली था जहाँ पे एम्पोरिया मॉल था, जहाँ पे गिनी चुनी 5-7-10 ब्रांड्स अवेलेबल थी. करेक्ट. आज बॉम्बे में आपको जो ब्रांड चाहिए आपके फुटस्टेप पे अवेलेबल है. करेक्ट है. सो जो ग्रोथ हो रहा है ना, उसमें आज रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है अगले 5-10 सालों में. जो स्कैरसिटी आने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लीजिंग, योर ऑफिसेज, योर रिटेल एरिया, सारे ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस भी बनते जा रहे हैं. को लिविंग, को वर्किंग, एवरीथिंग. बिकॉज आज चाहिए ना, बहुत स्टूडेंट, स्कोप है. आज स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उनको क्या चाहिए? दे नीड समथिंग इन को लिविंग. हाउसिंग चाहिए. तो स्टूडेंट हाउसिंग चाहिए. आज बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रही है, जब तक उनको अपना सेटअप नहीं मिलता है, दे नीड एन ऑफिस स्पेस. तो को लिविंग आ रहा है. दे आर वर्किंग इन दैट को लिविंग, दे आर वर्किंग इन दैट वर्क स्टेशन एंड डूइंग दैट जॉब till the time their office is not ready, because they want base right now. Everybody right now need their base in all the cities because it's growing. It's growing.
So our growth story is too big right now, and we can ई-कॉमर्स ग्रो कर रहा है. everything. You name the industry, and it's growing right now. Your motor industry is doing so well. Your IT industry is doing so well. So everybody has a अगले growth 5 story. साल बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं. बहुत अच्छे हैं. तुम्हारे पास ये Audi काम है, BMW यही टाइम है कि काम कर लो और अगले 15 साल 20 साल का पैसा कमा हाँ, लो. वही कह रहा हूँ ना. तो ऑडी है, मर्सिडीज है, BMW है, तो एक और गाड़ी आपकी आ सकती है. इतना काम है. और एक लास्ट खाली मेरा एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आई वॉज इन द US एंड आई हैव डन माई बैचलर्स देयर, माई बिजनेस मैनेजमेंट, एंड आई केम बैक. मुझे ना आशीष 5-6 साल तो एडजस्टमेंट में लग गया. एंड माई फादर बीइंग a very well-known doctor, as a broker, you know, I was not very comfortable. But today, Ashish, I am proud. Yes. And we both were there at the event of Times of India where they recognized the channel partner. Yes. तो Times of India इतनी बड़ा मीडिया हाउस है, वो रियल एस्टेट के लिए उन्होंने रियल्टर का एक अवार्ड किया है. तो आई थिंक वी आर इन द गुड प्रोफेशन. और आपके जो कलीग्स भी आ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, CA MBAs आ रहे हैं. तो जैसे आपने बोला अगला 5-10 साल इज द बेस्ट ईयर. It's the best time to work, it's the best time to earn, it's the best time where you can do a maximum business. दुबई मार्केट खुल गया है और एवरीथिंग इज ओपन नाउ. Everything is open है. आजकल है ना क्रॉस ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे क्रॉस हैं. ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्रॉस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. दुबई की प्रॉपर्टी यहाँ बेचो, वहाँ पे दुबई पे जो इंडियन बेस्ड है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनका प्रॉपर्टी आप यहाँ बैठे बैठे वहाँ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हुए पूरा. सो देयर इज लॉट Good ऑफ opportunity. गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप. फ्रेंड्स विद प्लेजर. आपने सबने नोट संगीत, किया होगा. आपने इतना पूछ लिया, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है. पूछे ना भैया. अरे आप बिल्कुल पूछो. क्या सोचा या क्या माइंडसेट आया, क्या थॉट आया कि आपने हैशटैग शो शुरू किया? अगेन गुड क्वेश्चन. तो जैसे आपको पता है कि हमने क्रेडाई एमसे चाहे एरिया ग्रुप को कवर किया, तो हम SH के लाइव करके एक हमारा एक वर्टिकल था, तो वो हम कर रहे थे, राइट. फिर मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट बिकम पॉपुलर, सो लेट मी स्टार्ट अ पॉडकास्ट. तो मैंने एक्चुअली पहले नाम रखा था द HH के शो. फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरे को मेरे नाम पे शो नहीं करना है. एक तो आशीष, जहाँ तक अगेन आई एम ऑल्सो लिटिल कंटेंटेड पर्सन, यू नो, आई डोंट हैव सीन यू लाइक दैट. आई एम कंटेंटेड, आई डोंट वांट कि मेरे को बहुत कुछ करना है. तो मैंने इतना है कि आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट विद इन द इंडस्ट्री. सो आई थॉट कि आई डोंट वांट दिस नेम, एंड आई सेड एग्जैक्टली 1 year बैक व्हेन दिस आइडिया केम टू माइंड कि आई वांट टू डू द पॉडकास्ट, कि इसको हम प्रोफेशनल सेटअप करेंगे. जैसे आप देख रहे हो, हमने पूरा स्टूडियो बनाया है, 3 कैमरा सेटअप हमने यूज किया है, एडिटर हमारा प्रोफेशनल है. तो इसीलिए जो भी ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग होता है, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वो नाम रखा है हैशटैग शो. और जेन्युइन एफर्ट है कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज आज शायद आपके बारे में, आपके फादर के बारे में जैसे काफ़ी लोगों को नहीं मालूम था, वो आज मालूम पड़ गया. तो दैट इज़ द ओनली रीज़न फॉर दिस, एंड वी वांट टू कंटिन्यू. लाइक टू टेल यू संगीत दैट इट्स अ वेरी गुड थॉट. आपके पॉडकास्ट से दिस विल गो रीच टू लॉट ऑफ brokers, lot of developers, lot of realtors, lot of common people also. Right. That what is India's growth story in terms of real estate. अभी स्मॉल एग्जाम्पल है आशीष. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं उनके जो मेंबरशिप नंबर है वो थोड़े बहुत तो बन ही जाएंगे हमारे पॉडकास्ट से. कोई तो कोई बनेगा. ऐसा है कि आज कॉमन पब्लिक को भी पता चलेगा कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी क्या है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट. राइट. हमारे जो ब्रोकर कम्युनिटी है वो शायद से एसोसिएशन में जुड़ेंगे. Correct. वो एसोसिएशन में जुड़ेंगे तो सब और होम बायर्स को भी मालूम पड़ेगा कि ब्रोकर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. ब्रोकर भी क्या कर रहा है स्टेट और नेशनल लेवल पे, वो भी उनको पता चलेगा. Right. सो दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप ये करते रहे 100%. और आगे इसके हो सके उतने एपिसोड बनाते रहे. एक मैं अभी आपने पूछा, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग दिस, फर्स्ट गेस्ट. दिस इज माय कमिटमेंट कि आई विल एंश्योर दैट दिस पॉडकास्ट कंटिन्यूज, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग अ लॉट ऑफ बिग नेम्स ऑन द शो. और हमने ये स्टूडियो भी इसलिए बनाया है. आई कैन सी इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप राइट नाउ कंप्लीट करके रखा है मैंने कहा बिकॉज ये अब करना है, राइट. और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इज गोइंग टूवर्ड दैट साइड. और हमने हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज कर रखा है. आई एम नॉट डूइंग टू मच ऑफ रिटेल ब्रोकिंग राइट नाउ, सो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. मेरा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, नो. तो व्हाई नॉट प्रमोट द इंडस्ट्री. आज अगर ब्रोकिंग कम्युनिटी हमारी
भाईचारा बढ़ता है, वो कुछ सीखते हैं और वो ग्रो करते हैं, तो द इंडस्ट्री विल ग्रो। और जैसे आपने बोला, इंडिया ग्रोथ स्टोरी एकदम स्ट्रॉन्ग जा रही है, 4-5 साल बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। तो इट्स ऑल ऑफ अस शुड मेक मनी, यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, साथ में मिलके कमाएं।